A very good evening to all of you, dear students. Today we are going to discuss a topic of BSc Part 1, Semester 1st, Unit 3rd, the superposition of two simple harmonic motion of the same frequency. Dear students, we know about the principle of superposition of previous classes, class 11th, and already we read about the principle of superposition. So first of all, we should go for the principle of superposition. So what is the principle of superposition? If I write here y is equal to y1 plus y2 plus y3 so on, then I think you remember this so on, then this theorem is actually called the superposition theorem. So we can say, according to this principle, the resultant displacement of the two or more than two simple harmonic displacements at each instant is equal to the algebraic sum of the individual displacement at that instant. That means, suppose we have a medium, and in this medium a wave is propagating here, so the particle or the molecule of the medium is displaced. Okay, so suppose the displacement of the first particle is y1, and suppose due to the second wave the displacement of the particle is y2, then the total displacement or the resultant displacement is called the y1 plus y2, or we can say the algebraic sum of the displacement. सो हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में जब चलती है तो उसके द्वारा विस्थापन जो उत्पन्न किया जाता है वह परिणामी विस्थापन जो होता है वह अलग अलग तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम सदिश योग के बराबर भी इसे ले सकते हैं। तो ये इसका मैथमेटिकली एक फॉर्मेट था जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ करके बताया और लिख कर बताया। ये जो है एप्लीकेबल होता है हर किसी के लिए, लेकिन जिसमें एम्पलीट्यूड जनरली जिस वेव्स के एम्पलीट्यूड जो होते हैं, आयाम जो होते हैं वो कम होते हैं, उसके लिए ज़्यादातर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। हाई एम्पलीट्यूड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सो हाई एम्पलीट्यूड का मतलब, जैसे हम कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक होता है या वॉल्केनो जो होता है, उनसे जो वेव्स निकलती हैं उनको जब हम मेज़र करते हैं, उन वेव्स के लिए सुपरपोजिशन का जो थ्योरम होता है वो लागू नहीं होता है। सो अब हम ये देखेंगे कि सुपरपोजिशन के थ्योरम से हम सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड अलोंग द सेम लाइन का हम डेरिवेशन निकालेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति इसमें बनती है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, सब कुछ। तो हमको आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। हमें फाइंड आउट करना है या हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक एक्चुअली ये है। हियर वी हैव टू स्टडी सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। So right now, if two simple harmonic motions superpose simultaneously on a particle, the resultant motion can be obtained by the combination of the both the component motions, like y equal to y1 plus y2, जैसा कि हमने देखा। So let us here consider the displacement of the simple harmonic motion which is flow in a straight line or propagate in a straight line acting on a particle of same frequency. Suppose the frequency here we take, the frequency is nu, and nu is equal to, we know, omega upon what, 2 pi. So both the wave have the frequency is same, because our topic is the simple harmonic motion of the same frequency waves. So but here we have to take the amplitude is slightly different. That means if we first wave have amplitude a1, then second one is suppose a2, and also there are some phase difference is generated here, that is phi 1 and phi 2. So now the displacement equation can be write in the form of x1 is equal to what, a1 sine omega t, a1 sine omega t plus phase difference for first wave is phi 1. That is why here we write phi 1. This is the equation number 1. And the second, due to second wave the displacement is x2, and here we consider the amplitude is a2 sine
because the frequency is same, that is why here we write omega t plus, in the place of phi we write here phi 2. So we have these two equations, and these two equations is the equation of the displacement come from the class 11th. You know y equal to a sin omega t or a sin omega t plus phi. Now here a1 and a2 are what you know about the a1 and a2 are the amplitude, and phi 1 and phi 2 are the phase. And now after superposition, applying the superposition theorem, we get x equal to x1 plus x2. That means we have to sum or algebraic sum of the two displacement, and here the displacement is a1 sine omega t plus phi 1 plus a2 sine omega t plus phi 2. My speed is slow little bit due to write in the laptop board, that is why by mouse. So here omega t plus phi 2. So dear students, now come to this point, we have a formula of sin a plus b here also, sin a plus b here also. So apply this formula, we get sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b. So we get sin a1 sin a cos b, that means sin omega t, okay, cos phi 2 little bit slow due to writing, plus cos a omega t sin b, that means sin of phi 2. Is it okay? Now this is for a1, and now for second similar a2 sin omega t. So we have sin what will here we write we write here a2 sin omega t cos phi, okay, plus cos omega t sin phi. I think you are very easy to understand this one. Simple, I apply here the formula of what simple trigonometry formula, like we can write here sin a plus b formula. इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया है. Okay, now come to the next what will be we have, so we have to expand. So taking some common values, we have a1, okay, a1 cos phi, we have a1 sin omega t also, so a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2, and in both case cos phi 2 we get a sin omega t. So taking the sin omega t common, लास्ट इक्वेशन जो था उसमें से हमने sin ओमेगा t को एक कॉमन ले लिया है, और सेकेंड पार्ट में हम ले लेते हैं किसको, cos ओमेगा t, जो कि दूसरा टर्म था है ना, और चौथा टर्म था. तो a1 के साथ आपका हो जाएगा sin phi 1, ये दूसरा टर्म जो था हमारा sin phi 1, एंड विथ a2 वी हैव अ sin phi 2. सो इट इज क्लियर, ओमेगा टी वाले पोर्शन को हमने सिर्फ क्या किया है, सेपरेट किया है. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया है, ये वाली जो वैल्यूज हमने ली है, कौन कौन सी वैल्यू हमने ली है, ये वाली वैल्यू. ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू की हम बात करें कि इसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम. तो हमने जो फर्स्ट पोर्शन है उसे एज्यूम किया है, क्योंकि कॉस से रिलेटेड है इसलिए हमने इसे एज्यूम कर लिया, ए कॉस अनदर एंगल इज कॉस थीटा, दैट मीन्स साइन ओमेगा टी, ए कॉस थीटा हो गया, ये साइन ओमेगा टी आपका बाहर था. और सेकेंड वाले पोर्शन में हमने जो कॉस ओमेगा टी था वो तो ठीक है, जो इनसाइड ब्रैकेट इज सपोज ए साइन थीटा. Okay, so now we can write it what, sin a cos b and cos a sin b. That means we write here sin of a plus b formula again create here. यहाँ एक और sin a plus b का formula बन गया, जहाँ a omega t है and b is theta and capital A is here. So we get the actually resultant displacement जो हमारा आया
वो ये आया डियर स्टूडेंट्स, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा। बहुत सिंपल है। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द फेस एंगल। भाई फेस एंगल है थीटा। अगर आपको थीटा चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? तो हमने ये जो पूरा पोर्शन है उसे हमने a cos थीटा लिया था, और ये जो पूरा पोर्शन है उसे हमने a sin थीटा लिया था। अगर हम दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। सो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर दैट मीन्स हमारे पास आएगा a cos थीटा, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ओके, a1 cos स्क्वायर phi 1 प्लस a2 cos स्क्वायर phi 2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे राइट हैंड साइड वाले को, प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos phi 1 phi 2। फर्स्ट टर्म हो गया ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, मैंने इसे ब्रेक कर दिया। नाउ आगे प्लस ये सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर लेना है, देन a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 1, ओके, प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए थे, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 2 प्लस ट्वाइस ऑफ सेम a1 a2 sin phi 1 sin phi 2। Is it okay? So now we have a cos and sin both, so taking the a1 sin। so देखिए ये जब a1 को हम कॉमन लेंगे, मैं इसे दूसरे कलर से बता दूं, a1 को जब हम कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 1 हो जाएगा। a2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। 2a1 a2 को कॉमन लेंगे, 2a1 a2 को कॉमन लेंगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट मीन्स cos a माइनस b फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। सो वी हैव a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? we get a square equal to a1 square plus what? a2 square plus what? common is 2a1 and a2, okay, cos a cos b sin a sin b, that means cos a minus b, that means phi 1 minus phi 2। we get this value, or we may write it if we want to determine amplitude a, then we have to take square root of this all values, that means a1 square plus a2 square plus twice of a1 a2 cos phi 1 minus phi 2। इज इट ओके? ये जो इक्वेशन आया वो था आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो देखिए आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप बोलेंगे कि थीटा भी सर फाइंड आउट करना है। सो थीटा के लिए बहुत सिंपल है, ये इक्वेशन को मैं फिर से याद रखना है हमें, हम नेक्स्ट स्लाइड में से फिर देखें। नाउ इफ यू वांट टू डिटरमाइन द amplitude is okay, but if you want to determine the theta, what is the theta? Then a sin theta, we take the a sin theta upon a cos theta. We have the value of a sin theta in a cos theta equal to a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2, a2 sin phi 2. Similarly, in second one we have what? a1 cos phi 1, a1 cos phi 1 plus a2, uh, we can write it a2 sin phi 2, sorry, cos phi 2. So we know a cancel and sin by cos is equal to tan theta, so we get the value of the tan theta actually, and the value of the tan theta is equal to this one, or theta will be easily determined in the form of the tan inverse. Now the special condition is what? Special condition, special cases is one, first one is the what, we take the case one is the if the phi 1 minus phi 2, that means the phase difference is equal to 0 or the even multiple of the pi 0, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 2n पाई ले लें, और आपको मालूम है कि phi 1 और phi 2 एक्चुअली है किसके साथ?
हमने जो ए फाइंड आउट किया था, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया था, उसमें कॉस वाला जो पोर्शन था, है ना, हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या थी, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos थीटा, ये वैल्यू थी हमारे पास एम्पलीट्यूड की। और cos की जगह हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि cos जो आपका यहाँ पर था phi1 माइनस phi2 जो था, मतलब फेज डिफरेंस जो था, उसकी वैल्यू हम 0 पुट करें तो आपको मालूम होगा कि जो cos की जो वैल्यू होती है 0 में वो 1 हो जाती है। दैट मीन्स हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन यदि 1 अगर मैं कर दूं तो उस कंडीशन में मुझे एम्पलीट्यूड जो मिलेगा वो एक्चुअली a1 प्लस क्या मिलेगा, a2 मिलेगा। अगर मैं स्मॉल a1 प्लस स्मॉल a2 अगर मैं दोनों को a मान लेता हूं तो मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो मिलेगा वो 2a मिलेगा। करेक्ट है। अगर मैं इसके वेव डायग्राम को देखना चाहूँ तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यदि मैंने ये a1 लिया है, a1 वेव हमारी है जिसका एम्पलीट्यूड a1 है, ये मैंने दूसरी एक वेव यहाँ से ली जिसको मैं चेंज करके कलर, ये दूसरी वेव हमने ली यहाँ पर, है ना, जिसके एम्पलीट्यूड देखिए थोड़ा डिफरेंट है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ ले रहा हूँ वो सेम है। तो इसका जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा कुछ इस तरह से, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ दोनों का डबल के आसपास मिलेगा ये। सो ये एक्चुअल में रिजल्टेंट आपका होगा। सो ये केस कब होगा, phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू जब आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नाउ अगर मैं ये ले लूँ, मैं इसे ऊपर वाले को इरेज करता हूँ या फिर हम इरेज कर लेते हैं इस पूरे को। अगर हम बात करते हैं कि केस 2 अगर हम ये लेते हैं कि phi1 और phi2 दोनों की जो वैल्यू है, phi1 माइनस phi2 की जो वैल्यू है वो यदि इवन मल्टीपल ना होकर ऑड मल्टीपल हो जाए, दैट मीन्स phi1 माइनस phi2 इज इक्वल टू पाई, और हम कह सकते हैं कि इसे हम ले सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई। अगर मैं ऐसी वैल्यू ले लूँ, पाई ले लूँ, 3 पाई ले लूँ, n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रखूँ, तो उस केस में आपको मालूम है कि cos पाई की जो वैल्यू होती है यहाँ जब हम पुट करेंगे तो वो वैल्यू में वो -1 वैल्यू रखता है, जिससे हमारा जो एम्पलीट्यूड आएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, इसकी अगर हम बात करें तो क्या है, देखें तो हमारा जो एम्पलीट्यूड आएगा वो निगेटिव आएगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड अब की बार मिनिमम हो जाएगा। तो कैपिटल ए जो मिलेगा वो एक्चुअल में मिलेगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स a1 माइनस a2। अगर मैंने दोनों एम्पलीट्यूड को सेम लिया है, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की बात की है, तो उस कंडीशन में हम ए को क्या क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो अगर मैं इसमें यदि फाइंड आउट करना चाहूँ, इसकी वेव्स को देखना चाहूँ, तो जरा देखिए ये हमारी फर्स्ट वेव थी, ऑपोजिट फेस में अब दूसरी वेव मुझे लेनी होगी, और ये हमारी सेकंड वेव। थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, फेस चेंज हुआ है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अब मुझे कोई रिजल्टेंट पूछे भाई तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर उठा रहा हूँ। अब देखिएगा इस ग्रीन कलर से जो मैं लाइन खींचूंगा ब्लू के ऊपर, वो आपका रिजल्टेंट, दैट मीन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ही नहीं, वो क्या हो गया, 0 हो गया। सो सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, okay, of same amplitude and same frequency but it in opposite phase, then the resultant will be 0। आप देख रहे हैं कि कैसा रिजल्टेंट आपको मिल रहा है। तो ये हमारा टॉपिक था, बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। किसका हमारा टॉपिक था, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड ही यूनिट 3 का टॉपिक था। आई थिंक आफ्टर दिस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इजीली। थैंक यू वेरी मच।